উত্তর ত্রিপুরা জেলার তেলথুই এলাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত হলো এক নতুন পালক। এখনো রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উন্নত মানের উচ্চশিক্ষার জন্য বহির্রাজ্যে যেতে হবে না, কারণ তেলথুয়ে প্রতিষ্ঠিত আর্যভট্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এখন বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে, যা ইউজিসি অনুমোদন প্রাপ্ত। বিশেষভাবে এই বিদ্যালয়ে ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া পিসিআই এর অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি বিফার্ম এবং ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি ডিফার্ম কোর্স চালু হচ্ছে। প্রথম ধাপে প্রতিটি কোর্সের জন্য 60টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আজ দুপুর 12টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানান, ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের জন্য এটি কর্মসংস্থানের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হতে চলেছে। উল্লেখ্য, আর্যভট্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যেই রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। পানিসাগর প্রতিনিধির রিপোর্ট, অধিকার বার্তা। প্রথমেই আমি সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আমাদের আজকের এই আনন্দের যে সংবাদ, সেটা সবার সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাদের আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি। আমাদের একটি নতুন অনুভব, আমরা আর্যভট্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিসিআই অ্যাপ্রুভাল আমাদের দিয়েছে ডি ফার্মা এবং বি ফার্মা কোর্সের জন্য। বোথ কোর্সে আমাদের 60টি করে আমরা সিট পেয়েছি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার এটি প্রথম পিসিআই অ্যাপ্রুভ ইনস্টিটিউশন হতে চলেছে, যেটাতে আপনারা ডি ফার্মা বি ফার্মা এই দুটো কোর্সই পড়াতে পারবেন। ডি ফার্মা 2 ইয়ার্সের হবে, বি ফার্মা 4 ইয়ার্সের হবে। এছাড়া আমাদের এখানে এলএলবির যে কোর্স সেটাও আমাদের রয়েছে। বাকি আমাদের প্রফেশনাল কোর্সেস রয়েছে, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছে, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে রয়েছে। ঠিক আছে, আমরা উত্তর ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো 2024-এই মাস কমিউনিকেশনে যেটা আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স, সেটা আমরা শুরু করতে পেরেছি। এটাও আমাদের একটাই অনুভূতি, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইব। আমাদের সাথে আছেন এখানে আমাদের চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের রেজিস্ট্রার ম্যাম এবং আমাদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার স্যার। আচ্ছা, আমি আছি, আমার নাম নিরুপম নাথ। আমি এখানে অ্যাডমিশন ডাইরেক্টর প্লাস মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আমি আছি। आर्यवर्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन रमन कुमार। हमें आप लोगों को आज यहाँ आए बहुत खुशी हुआ और ये बताने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आर्यवर्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ त्रिपुरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी जो 2025-26 सेशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पीसीआई के द्वारा डी फार्मा और बी फार्मा का कोर्स का अप्रूवल मिल गया है। जो नॉर्थ त्रिपुरा के बच्चे या त्रिपुरा के बच्चे पहले बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अब उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर आप बी फार्मा एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मा का एडमिशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, बच्चे के लिए कैंटीन है, बच्चे के लिए वॉशरूम है, बच्ची के लिए फीमेल के लिए अलग से कॉमन रूम है और बॉयज़ के लिए अलग कॉमन रूम है। और जल्दी ही आप लोगों को एक और अच्छा न्यूज़ आएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का भी अप्रूवल जल्दी आएगा, जिससे एलएलबी, बीएएलएलबी, बीबीएलएलबी ये भी कोर्सेज का जल्दी से जल्दी हम आप लोग को बुलाएंगे। इस बार यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज स्टार्ट किया है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए में जो कोर्स स्टार्ट किया है, बीसीए डेटा साइंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में बीबीए ऑनर्स है, बीबीए ऑनर्स में अनेकों स्पेशलाइजेशन है, एमबीए है, अनेकों स्पेशलाइजेशन है, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है। उसके अलावा 12वीं क्लास के बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड एमबीए भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का होगा। आर्यवर्त यूनिवर्सिटी जो है इन हाउस स्कॉलरशिप भी दे रहा है कि जैसे कि कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, हमारा यहाँ पे एक टेस्ट होता है,
टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप सुविधा भी उपलब्ध है। जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सारे बच्चे को, जिसका भी 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है, वो सारे बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्कॉलरशिप देता है। हमारा बैंकिंग पार्टनर भी है, जो कैनरा बैंक ऑफ इंडिया है, जो धर्मनगर ब्रांच हमारे साथ से MOU किया है कि जो भी बच्चे को पढ़ाई में पैसे की दिक्कत है तो बैंक लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चे को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर कोई बच्चा लोकल में यहाँ पे है जिसको आने और जाने में तकलीफ है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है 25 एकड़ कैंपस में एस्टेब्लिश किया गया है, तिलथई धर्मनगर, नॉर्थ त्रिपुरा में। तिलथई धर्मनगर और पानी सागर के बीच में है। जस्ट यहाँ से रेलवे स्टेशन पानी सागर 5 किलोमीटर है और धर्मनगर रेलवे स्टेशन लगभग 12 किलोमीटर है। और यहाँ पे जैसे कि अगरतला एक बहुत बड़ा हब है, तो हमारा जो नॉर्थ त्रिपुरा धर्मनगर जो है वो सेकेंड माना जाता है कि सबसे बड़ा सिटी है। तो अब जो है यहाँ के बच्चे कहीं बाहर शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ फार्मेसी की पढ़ाई हो जाएगी, लॉ की पढ़ाई है, कंप्यूटर की है, मैनेजमेंट की है और सोशल साइंस ह्यूमैनिटी की है। ये सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी वगैरह वगैरह सारे कुछ है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। सर आपने बोला कि SC और NSP जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चा अगर मेरे मतलब जो SC बच्चा है, ST बच्चा है और OBC बच्चा है, वो सबको स्कॉलरशिप देता है। उसका 4 फेज होता है। पहला फेज होता है इंस्टीट्यूशन लेवल का वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन, उसके बाद स्टेट का होता है और लास्ट में जाके सेंट्रल होता है। और लगभग बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। जो भी बच्चा मतलब 2.5 लाख से जिसका इनकम कम है, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, PRTC देना पड़ता है, बैंक लिंक होना चाहिए आधार से, और कुछ डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे पेपर्स बच्चों को देना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, उसमें सारे पोर्टल में अपलोड करना होता है और बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में आता है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता, वो बच्चे के अकाउंट में आता है, स्टूडेंट के अकाउंट में आता है। पर पेरेंट का वो इनकम सर्टिफिकेट लगता है उसमें, या माताजी दे सकते हैं या पिता दे सकते हैं। आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, बच्चा ऑनलाइन टेस्ट को फिलअप करता है और बच्चे उसको क्वालिफाई होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जस्ट IQ लेवल टेस्ट करना होता है कि ये बच्चे फार्मेसी के लिए अच्छा है, ये बच्चा कंप्यूटर के लिए अच्छा है, ये बच्चा मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, ये बच्चा लॉ के लिए अच्छा है। मतलब विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, जैसे जर्नलिज्म के लिए, वो बच्चे का IQ लेवल जस्ट टेस्ट होता है और बच्चे का फिर टेस्ट के पास करने के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाता है। कैसे? तो बच्चा को क्लास करना मैंडेटरी है, बच्चे को ड्रेस है, बच्चे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम वगैरह सारे वेल इक्विप्ड है। आप लोग भी आया होगा, हमारा हर क्लासरूम में वेल इक्विप्ड टेबल है, चेयर है, फैन है, लाइब्रेरी है, जर्नल्स है, ये सारे चीज़ उपलब्ध है, तो बच्चा इजीली कर सकता है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कॉकबोरक है। दूसरा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा राज्य का आर्यवर्त यूनिवर्सिटी है, जो 2023 में आते ही ये कॉकबोरक भाषा को MA कॉकबोरक स्टार्ट किया और ये बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकंड किया, थर्ड, ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं और फाइनल ईयर के बच्चे ये पास कर जाएंगे। लगभग 90 बच्चे के अप्रॉक्स जो है हमारे यहाँ कॉकबोरक के है, जो जिरनिया से है, खुमलुंग से है, उसके बाद अगरतला से है, अमरपुर से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे आए और शिक्षा प्राप्त किए और 75% हर बच्चे का अटेंडेंस लगभग है। पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। अभी तक त्रिपुरा में अभी आया नहीं है। जैसे हमारा नंबर आएगा, बार काउंसिल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लासरूम है, मूड कोर्ट है और जो बार काउंसिल का नियम है वो सारे फुलफिल है और हमें जल्दी से जल्दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाएगा। हाँ, डी फार्मा और बी फार्मा का हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। 60 सीट डी फार्मा का, 60 सीट बी फार्मा का दिया है और उसके अलावा अगले साल हम और भी कोशिश करेंगे कि और भी इसको आगे बढ़ाएं। और वेल इक्विप्ड हमारा लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी हमारा प्रॉपर गैस का कनेक्शन है, पानी का है, जितने भी लेबोरेटरी में रिक्वायरमेंट सामान है हमने ज़्यादा ही सामान करके मंगाया कि जैसे कि आप देखेंगे गैस लाइन, पाइप लाइन और जितने इक्विप मतलब इक्विप में है वो पूरा फुल फ्लैश्ड है।
कहीं तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मीडिया वालों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेबोरेटरी में भी जाएं, देखें कितने तरह के सामान है। सारा सामान दिल्ली से लाया गया, क्योंकि ये लेबोरेटरी लोकल में नहीं मिलता है। ये सारा हमने ट्रक से जो है दिल्ली से सारा सामान लाया, फिर दिल्ली से इंजीनियर आया, पूरा को असेंबल किया, असेंबल करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दिल्ली से कमेटी आया, पूरा वो लाइव चेक किया, लाइव चेक करने के बाद अप्रूवल दे दिया कि आप एडमिशन स्टार्ट करिए। लेकिन 60 सीट दिया डी फार्मा का और 60 दिया बी फार्मा का। जब यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में चला जाएगा तो एक और चीज़ इसमें से चालू होगा, लेटरल एंट्री बी फार्मा। बी फार्मा में क्या होता है, लेटरल एंट्री भी स्कीम होता है। अभी तो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री नहीं है। जब हम सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो जो बच्चा त्रिपुरा राज्य या बाहर के बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकता है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल है। जो डायरेक्ट एडमिशन लेगा वो तो 4 साल में होता है। लेटरल एंट्री स्कीम जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, टोटल सीट का 10%, लेकिन वो सेकेंड ईयर में होता है। यही है, वो एक दिन पहले लेटर हमें देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो लोग आए, आने के बाद उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग तो बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं जस्ट लाइक, क्योंकि वो लोग तो दिल्ली से आए हैं। तो वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा और इतना खुश हुआ त्रिपुरा में लोगों से मिल के कि इतना ग्रीन है हमारा त्रिपुरा कि जैसे कि गोवा जैसे फील है। जैसे आप जब गोवा जाएंगे तो बहुत हरा भरा जगह मिलेगा। तो वो जो ड्रग इंस्पेक्टर आए, यहाँ पे लेबोरेटरी देखा, लैब देखा, यहाँ के लोगों से भी बातचीत किया, हमारा यहाँ प्रधान से भी मिला, हमारा कुछ समाज सेवी लोगों से मिला, बहुत उनको अच्छा लगा। और वहाँ पे आके रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट जाने के बाद दिल्ली गया, 12 तारीख को ऑनलाइन हमारे पोर्टल में डाल दिया अप्रूवल लेटर। इसीलिए हमने लिखा है PCI अप्रूव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव। और ये आर्यवर्त यूनिवर्सिटी, ये नॉर्थ त्रिपुरा का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। ऊनाकोटी में फार्मेसी की शायद पढ़ाई नहीं है, धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा में पहली बार हुई। हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए, मीडिया बंधु के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे अब नॉर्थ त्रिपुरा में रहेंगे, फार्मेसी की डिग्री लेंगे। कोई बच्चा बेंगलोर भी जाता है, जितना वैल्यू वो डिग्री का है उतना ही वैल्यू है। तो क्यों हमारा बच्चा जाएगा बाहर? अब हमारा बच्चा घर में रहेगा, घर में ही पढ़ेगा। और लाइसेंस भी उसको सेम स्टेट होने के कारण उसको NOC की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी NOC दे रखा है।